clubbing or aggregation of income. Okay. Now, first of all, this is one of the topics. So this is a theoretical topic. So I thought that it will be easier to cover in this session. So what do you mean by clubbing of income or aggregation of income? Clubbing means joining together of two incomes. So aggregation also means to aggregate, to join of two incomes. So let us see in which cases, the clubbing or aggregation of the income happens. First of all, let me tell you the background of this. You know the income tax rates. Income tax rates are based on slab rates. For example, for this assessment year, 1920, or for assessment year 1890, the rates are that the first 2.5 lakh rupees of income is tax-free. There is 0% tax. Next 2.5 lakh income is taxed at the rate of 5%. Next 5 lakh of income is taxed at the rate of 20%. And the balance is taxed at the rate of 30%. And in balance also, income from 10 lakh to 50 lakh, the tax rate is 30% plus there is a surcharge, additional surcharge of 10%. Similarly, income above 1 crore, the surcharge rate is, the tax rate is 30%, but the surcharge rate becomes 15%. So basically, as the income increases, the rate of tax increases. Now, normally what a person would do, suppose I am the person and I have got an income of, let's say, 15 lakh rupees per annum. So what I will do, up to 5 lakh rupees, government says first 2.5 lakh is 0%, but however, you will get a rebate. If your income is up to 5 lakh, you will get a rebate of 12,500. So my income tax becomes zero if I earn up to 5 lakh rupees. I am talking about this financial year. Now, what I will do, I will, out of my 15 lakh income, I will transfer 5 lakh rupees to my wife. I will transfer 5 lakh, another 5 lakh to my son. So since 5 lakh with each person is tax free, so I don't pay any tax on it. 5 lakh Mukul Jain, and I have transferred 5 lakh to my spouse, 5 lakh to my, say, son or daughter. So now income tax people will say, oh, you are making fool of ourselves. So you have transferred, 5 lakh each and you have made it tax free. No. What if you have just transferred your income to your spouse or to your child? We will treat it as one income only. So we will combine this income in your income only in the name of Mukul Jain. So that is the basic meaning of clubbing. Is this basic premise clear to you? Now I want to hear your voice. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे Yes, बहुत sir. अच्छे से सर बिल्कुल Yes, sir. Good. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So clubbing. So with this background, we go to the further slide. So is it logical or not from the income tax department point of view? They say, no, we are not fools. You cannot split your income like that. So we will just treat it as one income. So we will club all those income of your wife and your son, which you have transferred to them, as your income only. So this is so this is if the husband is only earning while the wife and the son are not earning. Yes, absolutely. ये Even बात if I'll add to that, even if the wife is earning, she's having her own income. But if I transfer some of my income to my wife, so that income which I have transferred to my wife, whether she's earning or not earning, even then, that income will be considered as my income. That is husband's income only. So transferring means one income only. Yes. So I can't just transfer my income. It may be wife, it may be anybody else also. If I just transfer my income to them, give them anything as a gift, it will be treated as my income only. सर Yes, please. सर पर कुछ लिमिट के लिए एग्जाम्प्ट भी तो मिलता होगा, जैसे कुछ कितना अमाउंट हम ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ ऐसा भी होता है सर? नहीं, देखिए, ये दिस इज माई मनी. आई कैन गिव माई मनी टू एनीबडी. नंबर वन, this is my money, whether I spend it myself, whether I give a gift to anybody, to my wife, whether I burn my money. That is my income. That is my money. Government is not saying don't give. They are saying you give to your wife or to your girlfriend, to anybody. Yes, sir. Sir, वो तो है ही नहीं. However, you have to pay the income tax on your income. Yes, We sir. will treat all of that as your income.
Okay, sir. You give the Sir. tax and then you give your money to anybody else. Yes, sir. सर बट वन मोर क्वेश्चन. Yes. अच्छा ओके, मतलब हम उन पे पहले टैक्स पे करेंगे, उसके बाद ही हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और को? हाँ हाँ नहीं, पहले भी मतलब सर- ट्रांसफर कर सकते हो. नहीं, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन. अनिकेत, Yes, आप sir. इनकम कभी भी ट्रांसफर कर लो, बट जब साल के आखिर में व्हेन यू विल बी फाइलिंग योर रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, तो Yes, वो sir. सारी इनकम जो आपने ट्रांसफर की है, आपकी इनकम, वो सारी इनकम Yes, sir. आपके ही अकाउंट में जोड़ दी जाएगी. उसको नहीं सर, क्लबिंग टैक्स तो फिर लगेगा ना सर फिर सब पे? टैक्स तो लगेगा ही. टैक्स तो उसी बंदे को देना है जिसने वो इनकम कमाई है. यस सर. कहने का मतलब ये है. ठीक है सर. तो अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि व्हाट आर दोस वेरियस सर्कमस्टांसेस इन व्हिच द इनकम इज क्लब्ड. So clubbing of income, generally a person is liable to pay tax only on the income which is earned by him. See, there's some disturbance is coming from somewhere. Please put your mics on mute. Some traffic noise was also coming. Okay. So, however, under Income Tax Act 1961, there are certain provisions as per which an income of one person is to be included in the total income of other person. Inclusion of others' income in the income of assessee is called clubbing of income, and such clubbed income is termed as deemed income also. Right. So basically, this is what I explained to you. Now, cases where clubbing of income applies. Number one, income of other persons to be included in the income of individual. Now, here, the first point I will explain to you in the subsequent slides also. For example, Mukul Jain gave some of his income to his wife. Let's say Mukul Jain gave 5 lakh rupees to his wife as a gift. Number one, but that 5 lakh will be treated as income of Mukul Jain only. But my wife or Mukul Jain's wife, suppose, invested that 5 lakh in a bank and she earned some interest on that money. सर सॉरी सर, वो बीच में गलती से लेफ्ट हो गया था, एक बार रिपीट कर सकते हैं आप? Suppose a person gave some money to his wife, Yes, say sir. say 5 lakh rupees, for Okay, sir. example. Okay. Now, wife invested that 5 lakh in a bank fixed deposit, FD. So 5 lakh will earn some interest after 1 year. Yes, sir. So even that interest will also be treated as the income of husband only. Okay, sir. Okay, sir. Not only the 5 lakh which husband has given to the wife, that 5 lakh तो है ही husband के, वो तो husband था, उसके ऊपर भी टैक्स देगा. लेकिन Okay, जो sir. इंटरेस्ट सपोज कर लीजिए 10% पे उसने कहीं कोई एफडी कराई है या किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, उसमें 10% का इंटरेस्ट मिला है उसको, ओके सर. या Yes, रिटर्न sir. मिला है उसको, शेयर से रिटर्न मिला है या बॉन्ड से रिटर्न मिला है, लेट्स से 10%, तो 50,000 कमा लिया उसने एक साल में 5 लाख के ऊपर. यस सर. यस. तो सर उस 50,000 पे भी टैक्स देगा? वो 50,000 भी हस्बैंड की इनकम में जुड़ जाएगा, उसके ऊपर टैक्स जितना भी बनेगा तो वो देगा उसका. बिल्कुल. ओके सर. So that is why first point is income of other persons also to be included in the income of the individual. सर टैक्स कितना परसेंट लगेगा? 12% ना? नो टैक्स तो स्लैब रेट के ऊपर लगेगा ना. इट विल डिपेंड कि उसकी उस साल कितनी इनकम हुई है. तो फर्स्ट जैसे 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 2.5 लाख एट द रेट ऑफ 5%, तो वो जिस भी स्लैब रेट में आएगा ही विल पे आइदर 5% और 20% और 30% एज द केस में बी. ओके सर. Second is income received from firm assessed as firm and association of persons. Now here also we will come to this a little later, and third is deemed income. We'll come to them one by one. So first of all, let us again talk in detail income of other persons to be included in SSC's total income, which comes under section 62-65 of the Income Tax Act. Now, this case is that transfer of income without transfer of assets. Before reading it, let us assume transfer of income without transfer of assets. Let us say I have got a house in my name. So that is an asset, property. So, and this house I have given on rent. So some rent is coming out of that house. So I am transferring that rent to another person. This person may be my wife, it can be any other third, maybe my friend also.
So house is in my name. I have not transferred the asset, but I have transferred the income earned from that asset to the other person. So this case is like that. So transfer of income without transfer of assets. Did you get this point? Or let us say, Sir, can you please repeat it, sir? Can you please एक बार repeat, और, sir? Yes, sir. let us say मेरे नाम पे कोई मकान है और मैंने उस मकान को किराए पे दिया हुआ है, Yes, sir. और उससे जो किराया आ रहा है वो मैं किसी और अपने फ्रेंड को या अपनी वाइफ को या किसी भी अपने रिलेटिव को उसका रेंट की बाहर से बाहर जो इनकम रेंट से आई मैंने उनको ट्रांसफर कर दी उनके नाम पर, तो इस केस में क्या होगा? मकान मेरे नाम पे या कोई बॉन्ड मेरे नाम पर है, मैंने कोई Sir, बॉन्ड tax- खरीदे हुए हैं, बॉन्ड से जो इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट में उसका जो इनकम आ रही है वो मैं किसी और को दे रहा हूँ। सो सर, टैक्स तो आपकी इनकम से ही कटेगा सर, कंसिडर हो। हाँ, यस यस वही है। तो क्योंकि सर इसमें आपका नाम देखिए, पे है इसलिए। हाँ यस यस, तो इसमें देखिए वो ये लिखा हुआ है, इफ एसएससी ट्रांसफर्स टू अनदर पर्सन सम इनकम बट विदाउट द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स प्रोड्यूसिंग दैट इनकम, तो अब क्या होगा? द इनकम फ्रॉम दैट एसेट वुड बी टैक्सेबल in the hands of the transferer, the person who transferred the income. यानी मैं ट्रांसफरर हूं, मैंने अपनी इनकम किसी और को दे दी, एसेट मेरे नाम पे है, तो द इनकम जो भी है उसको वो टैक्स मुझे ही देना पड़ेगा उसका। सेकंड है द ट्रांसफर में बी रेवोकेबल और मे नॉट बी रेवोकेबल। इसका क्या मतलब है? भाई ये नहीं चलेगा। इसका मतलब है द रिवोकेबल और नॉन रिवोकेबल का क्या मतलब होता है कि एक तो होता है मैंने किसी को पैसा दिया उसका, मैंने कहा यार मैं तुझे पैसा दे रहा हूं वापस ले लूंगा तेरे से, वो तो हो गया रिवोकेबल। आई कैन रिवोक कि दैट आई एम गिविंग यू द मनी बट आई कैन टेक बैक दैट मनी आफ्टर सम टाइम। दैट इज द सिचुएशन। Sir, repeat. Revocable, the transfer may be revocable. Revocable means I have given certain things to you and with the condition that I will take back from you after some time. That is called revocable. That is reversible. Revocable means it is reversible. Reversible. जैसे आप Okay, किसी sir. अपने फ्रेंड को अपनी बुक दे देते हैं कि यार आप पढ़ने के लिए दे दी है, बाद में वापस ले लूंगा मैं, ठीक है ना? तो दैट इज ए Yes, sir. रिवोकेबल थिंग। मे नॉट बी रिवोकेबल मीन्स आपने किसी के नाम करी दे ही दी यार, तू ही रख ले बस। So सो permanently transfer. परमानेंटली ट्रांसफर, तो वो ट्रांसफर भले ही आपने टेम्परेरीली किसी के नाम पैसा किया है उससे इनकम या हमेशा के लिए कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी इनकम होगी जो जिसने दी है ट्रांसफरर ने, उसी को ही उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। एंड द ट्रांसफर में भी सर लेकिन अगर परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, जैसे किसी का नाम घर लेके कर दिया परमानेंट नहीं, घर ट्रांसफर, नहीं है, ये है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। इसमें घर नहीं किया है, सिर्फ इनकम ट्रांसफर किया आपने। सिर्फ इनकम। लेकिन सर अगर इनकम भी ट्रांसफर कर दे तो टैक्स तो जिसका नाम करे वो पे करेगा ना, क्योंकि परमानेंट ट्रांसफर हो गया अब तो। नहीं, वो अलग पे करेगा। ये भी आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सपोज मकान का कोई किराया आ रहा था, लेटस से मैं एज्यूम करता हूँ कि अच्छा बड़ा मकान था और अच्छा उसका रेंट आ रहा था, गुड़गांव जैसे शहर में वो मकान था, उसका 5 लाख रुपया साल का किराया आ रहा है। मैंने 5 लाख का 5 लाख किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो वो 5 लाख तो मेरी ही इनकम मानी जाएगी, तो मुझे उसके ऊपर टैक्स मुझे भी देना है। अब मैंने जिसके नाम उसको ट्रांसफर किया है तो वो भी उसके ऊपर टैक्स देगा, क्योंकि वो उसकी अलग से इनकम हो गई, तो 2 बार गवर्नमेंट को उसके ऊपर टैक्स मिलेगा। सर गवर्नमेंट तो मतलब ऐसे लूट रही है सर, 2 जनों से टैक्स लेके। तो वो उसकी अलग इनकम हो गई ना। यस सर। अब देखो ना, आप अगर कोई कंपनी चला रहे हो और कंपनी में आपके एम्प्लॉई हैं, तो एम्प्लॉई भी तो फर्म अपना अलग टैक्स देती है। एम्प्लॉई को जो सैलरी मिल रही है, एम्प्लॉई अपनी सैलरी के ऊपर टैक्स देता है। यस सर, यस सर। तो वही चीज है ना कि मेरे को रेंट से इनकम हुई है, तो रेंट की इनकम तो मेरी हुई वो। अब वो मेरा रेंट था, मैंने किसी को भी दे दिया, वो मेरा पैसा था, लेकिन टैक्स गवर्नमेंट मेरे से ही लेगी। सर अगर विदाउट द रिकॉर्ड किसी को दे दिया, मतलब बिना बैंक को दिखाए 5 लाख किसी को मैंने हैंड टू हैंड दे दिए, तो ये वो हो जाएगा। अगर नहीं पकड़ा गया तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा उसे। Oh, that is a different thing that you have hidden. वो आपके लिए तो हिडन नहीं हुआ ना, जिसने इनकम अर्न की है या तो उसने छुपाया हो। अगर उसने नहीं छुपाया हो, जैसे मैंने, अगर मेरा घर है, I have not hidden it, तो I am paying tax, but to whom I have given that I have hidden, तो उसके लिए वो नंबर 2 की इनकम हो गई, मेरे लिए वो नंबर 1 की इनकम थी। ओके सर।
ठीक है? सर फिर सर जैसे प्रिंस ने बताया कि अगर बिना शो किए किसी को दे दिए वो पैसे, तो बाद में वो बनता उससे भी तो टैक्स ले सकता है ना, मतलब टैक्स के पैसे मतलब। हाँ, अगर उसका कभी भी पता चला कि उसको कहीं से पैसे मिले थे, गिफ्ट मिला था, तो इवन गिफ्ट इज ऑल्सो टैक्सेबल। ये मैंने आपको, आई हैड टोल्ड यू इन द क्लास दैट यस सर। a person can Yes, receive sir. a person Yes, sir. can receive gifts in a one financial year up to 50,000 rupees only. Beyond 50,000 rupees, if you have received any gift, whether in cash or in kind, all of that is taxable. So what about donation also, like charitable funds? Those are taxed or not taxed? See, there are certain charitable organizations which have to get registered under a particular section of the Income Tax Act. So if you as an individual has given your donation or charity to those organizations which are registered under section 80G, 80G, G for Gurgaon, under section 80G, then of course you will get the deduction also. Whatever money you have donated, for example, if you donate the money, say, to Prime Minister Disaster Relief Fund, now this like this corona is going on, it's a disaster, so the government will need a lot of money, and if you give funds to this Prime Minister's Disaster Relief Fund, so your 100% of your charity will be deductible. For example, your income is 10 lakh rupees, and out of that you have given 5 lakh under Prime Minister Disaster Relief Fund, so 10 lakh minus 5 lakh, so your net income will be treated as 5 lakh rupees only. Okay. So there are certain funds like Prime Minister's Flood Relief Funds or Chief Minister's Fund. So, and there are certain organizations which are registered under Section 80G. So if you give donation to them, that is not taxable. That is rather deducted from your income. Okay. Fine. So this is one aspect. Second aspect is that the revocable transfer of assets. By virtue of Section 61, if an asset is transferred under a revocable transfer, income from such an asset is taxable in the hands of the transferor and shall be included in his total income. Earlier, we were talking about, in this slide, we were talking about transfer of income without transfer of assets. Here, we are talking about that somebody has transferred his assets, but they are revocable. Revocable means reversible. I have transferred my house to somebody, and after that, I say, you know, after a few years, I have the right to take it back from you. That becomes revocable. Revocable means reversible. I can call it back. So if let's say if I transfer my property to somebody and I say that after 5 years, I will take it back from you. So in that case, whatever income I am earning from that property will also be taxed from me only. It will be treated as my income only. So many times, you know, people try to hoodwink the income tax authorities that उन्होंने कहीं पे ट्रांसफर कर दिया, अपने रिलेटिव, अपने भाई के नाम ट्रांसफर कर दिया, अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दिया, या अपने एम्प्लॉय के नाम ट्रांसफर कर दिया, अपनी फर्म के, और वो सब क्या होती है कि वो सब एक दीज आर फिक्टिशियस एंट्रीज कि हमने उसके नाम ट्रांसफर कर दिया, अब तो हमारी इनकम ही नहीं रही है, तो वही टैक्स देगा अपना टैक्स बचाने के लिए. उसका कोई टैक्स ही नहीं है क्योंकि उसकी कोई इनकम नहीं है. आपने वाइफ किसी की हाउसवाइफ है एंड यू हैव ट्रांसफर्ड योर एसेट टू योर हाउसवाइफ, so you save tax. She also doesn't have to pay tax up to a certain limit, and you also, you know, save your tax because you don't have to pay tax at a higher rate. So government says no, nothing doing like that. If it is a revocable transfer, that means it will come back to you and you are earning income out of it. We will tax in your hands only. So it will be taxable in the hands of the transferor. So this is what transferor, and shall be included in his total income. Fine. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next. Yes, sir. Yes. Now here we have tried to define what is transfer, what is revocable transfer. A transfer shall be deemed to be revocable, that is reversible, if it contains any provision for the retransfer, directly or indirectly, of the whole or any part of the income or assets to the transferor. This is what I told you, no? Retransfer. Yes, sir. Then second point, I am saying it in any way gives the transferor a right to reassume
power directly of the whole or indirectly over the whole or any part of the income or assets. Same thing, you know, it gives a right to the transferor to reassume, means वापस लेने का, उसकी power, उस assets की power directly या तो whole या indirectly over the whole, directly या किसी के through. तो एंड ट्रांसफर इंक्लूड्स एनी सेटलमेंट, ट्रस्ट, कोवेनेंट, एग्रीमेंट और अरेंजमेंट. कोई भी एग्रीमेंट किया हो, कोई सेटलमेंट बनाया हो, ट्रस्ट बनाया हो, तो उसमें भी तो ज्यादातर लोग अपने फैमिली मेंबर्स के नाम दिखा देते हैं ट्रांसफर, तो वो सब चलता नहीं है. इनकम टैक्स कहता नहीं, हम तो आप ही की इनकम मानेंगे. अगर आप वापस आपके पास आ जाएगा, इनडायरेक्टली आप ही का तो वो एसेट है, आपने सिर्फ नाम चेंज कर दिया उसमें. सही बात है सर, सही बात. अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं प्रोविजन ऑफ सेक्शन 62(1). Shall not be in the transfer is by way which is not revocable during the lifetime of the beneficiary. हाँ, इसमें देखिए, हाँ एक पॉइंट और है. अभी इस पॉइंट को से पहले, अगर इररिवोकेबल ट्रांसफर है, इररिवोकेबल मींस परमानेंटली आपने किसी के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है. अब वो जो प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी वो फिर ट्रांसफर की इनकम में नहीं जोड़ेगी, वो फिर जो ट्रांसफरी है जिसके नाम पे की है आपने प्रॉपर्टी, वो उसी के नाम पे इनकम आएगी. सिर्फ वाइफ नहीं होनी चाहिए उसमें, एक्सेप्ट स्पाउस. स्पाउस के नाम आप परमानेंट भी दिखा दीजिए तो वो नहीं मानेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज नहीं मानेगा, वो बोले एक ही फैमिली है भैया. स्पाउस के अलावा अगर आप किसी और के नाम परमानेंटली ट्रांसफर कर देते हैं वो कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट है अपना, और उससे अब इनकम हो रही है, वो फिर ट्रांसफर की इनकम नहीं मानी जाएगी. तो ये दिखा है, देखिए अब ये पॉइंट पे आता हूं, सीधा कर्सर जहां मेरा कर्सर है. इफ ए द ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ ट्रस्ट which is not revocable or irrevocable during the lifetime of the beneficiary. तो जिसके नाम आपने ट्रांसफर किया उसके लाइफ टाइम में वो वापस आपके पास नहीं आ सकती, तब एप्लीकेबल नहीं होगा. मतलब तब वो ट्रांसफरर के नाम पे इनकम ऐड नहीं होगी. या फिर और बी, ट्रांसफर इज अदरवाइज देन बाय वे ऑफ ट्रस्ट एंड इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफर. एक ही चीज है, मतलब उसको थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं भी है तब भी आपने किसी इंडिविजुअल के नाम पे किए तब भी. और ट्रांसफर इज मेड बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1961 विच इज नॉट रिवोकेबल फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 6 years. 1961 से पहले कोई रूल था तो तब के लिए है. एंड द ट्रांसफर डज नॉट डिराइव एनी बेनिफिट फ्रॉम सच इनकम. तो ये एक्सेप्शंस हैं उसमें कि यानी कि अगर परमानेंटली किसी ने ट्रांसफर किए तब उसकी इनकम ट्रांसफरर के इनकम में ऐड नहीं होगी. ठीक है. इसके बाद हम आते हैं. यस सर. अब ये देखिए, ये अब एक थोड़ा सा नया पॉइंट आया है. अब एन इंडिविजुअल इज असेसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस. Now what used to happen earlier, in earlier times people used to have business firms, and in their business firms they used to make their wives. Now ladies have our girls, females have started acquiring professional qualifications. They are working in companies, they are also running their businesses. You know, I am talking about 35 years back, when you know this was not the trend. Girls, even if they were you know educated, or 40 years back, they used to be homemakers. And कौन सा है? see okay, तो उसमें क्या होता था कि उसमें फर्म्स के अंदर the business people used to show their wives, their mothers as their partners. और उनको एज अ पार्टनर उनको सैलरी भी दिखा देते थे उनकी, चाहे तो पार्टनर दिखा देते थे या फिर उनको कोई ना कोई सैलरी दिखा देते थे अपनी फर्म से. रिम्यूनरेशन इज सैलरी. सो नाउ इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैव मेड अ रूल दैट इट विल नॉट बी अलाउड बेसिकली unless and until you are able to prove that the spouse may be wife, lady, or it may be a male also. They are saying spouse. Spouse means either husband or wife. It is irrespective of the gender. So sometimes we are taking example of gender based, but in income tax rule it's not gender based. They say if a spouse you are showing it is your business firm और आपने अपनी spouse को कोई salary या कोई इस तरह की income दिखाई हुई है, unless and until
you can prove that he or she has got some professional qualification, some technical qualification which are suitable to your kind of business. We will not allow that, and we will treat that income as the as the say husband's income only. तो ये हम देखिए, now I am reading it. If an individual has got a substantial interest in any company or concern, substantial interest here means at least 20% of the shares अगर आपके पास हैं, या 20% आपका शेयर है उस फर्म में, बिजनेस फर्म में, then any income accruing to the spouse of such individual from that concern or company shall be included in the total income of the individual having substantial interest in such concern. अब मैं दोबारा एग्जांपल बताता हूं. सपोज इट इज माय फर्म एंड आई एम होल्डिंग से 40-50% शेयर्स या 40-50% इन्वेस्टमेंट मेरा लगा हुआ है इस फर्म में, और एनी इनकम, और मैंने अपनी वाइफ को भी उसके अंदर पैसे दिखाता हूँ, वही 5-10 लाख रुपया वो भी निकालती हैं, उनकी सैलरी दिखाई है, कुछ भी दिखाई है, तो वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे ये मेरी इनकम है. द इनकम टू द स्पाउस मे बी बाय वे ऑफ सैलरी, या मैंने उनको बोनस दिया हो या कमीशन फीस दी हो या कोई भी रिम्यूनरेशन दिया है, तो वो मेरी ही इनकम में जोड़ेंगे. ये भी एक रूल बनाया है बिजनेस फर्म्स के लिए. मीनिंग ऑफ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट ये मैंने बता दिया है. पर्सन हैविंग एटलीस्ट 20% ऑफ द इक्विटी शेयर्स कैरिंग वोटिंग राइट्स, और पर्सन एंटाइटल्ड टू एटलीस्ट 20% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न. एक्सेप्शन क्या है उसमें? क्लबिंग के. If the income derived by the employed spouse from such concern is due to his or her knowledge, तो मुझे प्रूफ दिखाना पड़ेगा इनकम टैक्स अथॉरिटीज को कि उसकी नॉलेज, उसका टेक्निकल क्वालिफिकेशन या वर्क एक्सपीरियंस इज कंड्यूसिव टू माय बिजनेस, तो शी डिजर्व्स दैट मनी. It shall not be clubbed with the income of the spouse holding substantial income. It will be then it will be taxable in the hands of the employed spouse. Otherwise, if I am not able to prove it to the income tax authority, then they will add it in my income only if I am the business owner. Did you get this point? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Madhav has said no, sir. क्या सर, मैंने कुछ बोला ही नहीं. हाँ. एक नंबर सर. Now whether the rule is right. अबे तू ऑफलाइन कैसे चला गया बे? Say please, the recording, it's getting recorded, so please mind your language. See, you may have objections to the rule. We are not talking about whether it is right or wrong, but this is the rule of income tax authorities, and I have not made the rule. The rule has been made by the finance ministry, right? So this is to, I mean, if you see from the bigger picture, these rules have been made in order to avoid, any kind of, because people, used to show salaries to their wives, to their mothers, to their even grandmothers who do not know ABC of your business. They have never come to your business factory. तो उनको भी आप दिखा रहे हैं, सैलरी दिखा रहे हैं, उनको कोई पार्टनरशिप में कुछ चीज दिखा रहे हैं, उनका कोई पैसा भी नहीं लगा हुआ, तो ये उसको कर्व करने के लिए उन्होंने किया है. अच्छा, अब नाउ if both the spouses hold substantial interest in the same concern, in this case such income of the spouse shall be clubbed with the income of the spouse having higher income. अगर दोनों का ही सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, दोनों के ही शेयर्स हैं कंपनी में, या दोनों ने ही पैसा अपना लगाया हुआ है, उस केस में भी अगर उसमें भी क्लब कर देंगे ये इनकम. और किस में क्लब करेंगे? जिसकी इनकम ज्यादा है, द वन हु इज हैविंग द हायर इनकम. यू सी, in this case such income of the spouse shall be clubbed with the income of the spouse. If suppose husband's income is higher, so they will club the wife income with the husband income, or if wife's income is higher, then they will club husband's income with the wife's income. Now अब ये आप बोलोगे यार, this is a very unjust rule, unjustified rule, but ये रूल भी इसलिए बनाया गया है because लोग, भाई पैसा है ना, पैसा तो मेरा ही है, मैंने वो दिखा दिया, मेरी वाइफ ने पैसा लगाया हुआ है, पैसा एक ही का है. तो वो उसको कर्व करने के लिए कि दो जगह इनकम बढ़ रही है, लोग उसको पैसे को, टैक्स को सेव करने के लिए किसी पार्टनर्स बना रहे हैं, तो इसलिए हस्बैंड वाइफ का उन्होंने ये केस बताया कि हस्बैंड वाइफ या तो अलग अलग बिजनेस करें अपने नाम पे. सो मीनिंग ऑफ स्पाउस यू अंडरस्टैंड, मीन्स हस्बैंड और वाइफ. सो हस्बैंड इज स्पाउस फॉर वाइफ एंड वाइफ इज स्पाउस फॉर हस्बैंड. And wife husband means lawfully wedded wife and husband, not unlawfully wedded. So please remember that.
सर कोई पबजी खेल रहा है इसमें, आवाज आ रही है माइक की। Now, individual assessable in respect of income from assets transferred to the spouse. If any individual transfers any asset other than house property to his or her spouse without adequate consideration. सर AWM किसे कहते हैं? AWM, where it is written? AWM कहाँ लिखा हुआ है? सर कुछ नहीं सर, ऐसे ही कह रहे हैं, आप पढ़ाओ सर। घर छोड़ करके अगर किसी इंडिविजुअल ने अपने स्पाउस के नाम पर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, मींस विदाउट टेकिंग मनी बेसिकली. हाँ, कंसिडरेशन यू हैव स्टडीड इन बिजनेस लॉ आल्सो. So assets transferred means when an individual purchases property in the name of his wife from his own funds. The relationship of husband and wife should subsist both at the time of transfer and at the time of accrual of income. So any income from such transferred assets will be included in the income of the transferor. So ये जो सर subsist का मतलब subsist की means it should remain. Means transfer के टाइम पे दोनों husband wife थे, साथ होने चाहिए. हाँ, और अगर मान लीजिए बाद में उनका डाइवोर्स हो गया और बाद में उससे पैसा, सपोज हस्बैंड ने वाइफ के नाम कोई प्रॉपर्टी कर दी, हाँ, और जिस टाइम प्रॉपर्टी करी थी उस टाइम ठीक है हस्बैंड वाइफ थे, बाद में उनका किसी वजह से सेपरेट हो गए, डाइवोर्स हो गया, अब वाइफ को उससे कोई रेंट आ रहा है, यस सर, तो तब हस्बैंड की इनकम में ऐड नहीं होगा वो पैसा, क्योंकि अब वो दे आर डिफरेंट एंटिटीज नाउ. बट अगर तो फिर वो वाइफ टैक्स पे करेगी. हाँ, फिर वो वाइफ की इनकम हो गई, वाइफ टैक्स पे करेगी. लेकिन अगर वो तब भी सबसिस्ट मींस दे आर स्टिल हस्बैंड एंड वाइफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द इनकम इज बीइंग जनरेटेड. At the time of accrual of income means when the income is being generated. Accrual means generation of income. Yes, so sir. then this income will be in the next slide. You will see. Then this income. So this next line. Any income from such transferred assets will be included in the income of the transferor. Now this may be a property. This asset may be a property. This asset may be a fixed deposit. This asset may be a gold. This asset may be shares. So it could be any asset. Any asset, okay. Sir. It may be a commercial property. It may be a business. So whatever income is coming, it will be treated as the income of the transferor. On okay, sir. husband की income मानी जाएगी. Right? तो अगर एक चीज और है इसमें, अगर उसने वो प्रॉपर्टी बेच दी है, चलिए अभी तो हम इनकम की बात कर रहे हैं, वाइफ के नाम हस्बैंड ने प्रॉपर्टी की है, अब वाइफ ने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, उससे कैपिटल गेन हुआ. प्रॉपर्टी थी 5 लाख रुपए की, उसने बाद में उसको 10 लाख की बेच दी, तो 5 लाख का कैपिटल गेन हो गया. तो yes, उसके ऊपर भी कौन टैक्स देगा? हस्बैंड ही टैक्स देगा, क्योंकि वो हस्बैंड का ही कैपिटल गेन माना जाएगा. इवन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर उसने कोई उसके नाम में एफडी करी है, नहीं वाइफ को पैसा दिया, वाइफ ने उससे एफडी करी, उसका इंटरेस्ट जो आया वो इंटरेस्ट भी हस्बैंड की इनकम मानी जाएगी. लेकिन उस इंटरेस्ट से अगर वाइफ ने फर्दर कोई शेयर्स खरीद लिए, उस शेयर से जो इनकम होती है वो अब वाइफ की मानी जाएगी. यानी कि फर्स्ट स्टेज हो गया, उससे इनकम आई एसेट से. सर बट पैसा तो हस्बैंड का ही है. सुन लो एक मिनट, ये थोड़ा सा रूल देखिए, थोड़ा डाइल्यूट भी किया है ना उन्होंने, क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा यार इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट करेंगे तो वो थोड़ा अनफेयर होगा. एफडी कराई, एफडी का पैसा हस्बैंड का था, एफडी Yes, से sir. इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट भी आपने हस्बैंड का मान लिया, मान लिया हस्बैंड sir. ने, चलो दे दिया, लेकिन वाइफ ने उस इंटरेस्ट के पैसे से कहीं और फर्दर एफडी करा दिया, फर्दर शेयर्स खरीद लिया, उससे जो पैसा इंटरेस्ट या डिविडेंड आया वो वाइफ का. यानी फर्स्ट स्टेज पे तो आप हस्बैंड में क्लब करोगे, सेकंड स्टेज में क्लब नहीं करेंगे आप. ओके सर. ओके सर. हाँ, ये तो थोड़ा सा इन्होंने ये रूल इसको फेयर बनाया है, इतना वो भी नहीं Yes, किया. sir. तो एक्सेप्शंस देखिए, इसमें एक्सेप्शन क्या है? क्लब कब नहीं होगा? इफ द एसेट्स आर ट्रांसफर्ड बिफोर मैरिज. मैरिज से पहले अगर ट्रांसफर हुआ है तो वो क्लब नहीं होगी उसकी इनकम, क्योंकि उस टाइम वो हस्बैंड वाइफ नहीं थे लीगली.
या नंबर 2, इफ द एसेट्स आर ट्रांसफर्ड फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। आपने दिखा दिया, वाइफ से पैसा ले लिया, पैसे का ट्रांसफर दिखा दो, तो सीए क्या बोलते हैं कि भाई आप ठीक है, घर के घर में आप अगर एसेट्स करना चाह रहे हो तो घर के घर में पैसा है ना, पैसा दिखा दो, ट्रांसफर दिखा दो बैंक से, उनके बैंक से आप अपने बैंक में एंट्री दिखा दो, तब क्लब नहीं होगी इनकम। सो दिस इज अ गुड, यू नो। सर ये चीज समझ नहीं आई, एक बार दोबारा बताना, ये वाली लास्ट में बताएं। सेकंड पॉइंट जो बताया, जहां मेरा कर्सर है, यस। सपोज मैंने अपनी वाइफ के नाम पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। यस सर। लेट अस से 15 लाख की 20 लाख की प्रॉपर्टी थी, तो 15 लाख मेरी वाइफ के अकाउंट में होना चाहिए, मैंने वो पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया। वाइफ ने मुझे को मतलब पैसा दे दिया, तो वाइफ ने खरीद लिया एक तरह से मेरे से। यस सर। अब वो मेरी इनका, अब उस प्रॉपर्टी से मेरी वाइफ को जो इनकम होगी वो अब मेरे में ऐड नहीं होगी, वो फिर वाइफ की इनकम होगी, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे से खरीद लिया है, चाहे अपने हस्बैंड से खरीदा है, तो इसलिए वो एक्सेप्शन हो गया। इफ द एसेट्स आर ट्रांसफर्ड फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, समझ गए सर? तो फिर उसमें टैक्स वगैरह सब वाइफ ही पे करेगी, अब उस पे हस्बैंड को कोई रोल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। ठीक है। यस सर। थर्ड है, इफ द एसेट्स आर ट्रांसफर्ड इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। कई बार होता है कि देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, नाउ there has been an agreement, okay, we will live apart from each other, so as a result the wife says to the husband that yes, you give me one house to live where I will go. So in that connection, if the husband has transferred the asset to the wife, so then, you know, whatever money is being generated from that property will not be added in the income of the husband. So it is another exception. See, please keep your mic on mute mode unless and until you have to ask a question, please. Sorry, sir. Now, fourth point. Is it clear? Third point. Yes, sir. But in case there is some agreement of separation between husband and wife, so wife will also take alibi, no? Have you not heard this case of Amazon CEO Jeff Bezos? Yes, sir. Jeff Bezos had to divorce his wife. He gave a huge amount of his estate and so many $1 billion to her wife for getting separated. Yes, sir. So he gave 40% of his shares and properties to his. Great. Yes. So such a case, in that case, if a husband had to give some asset to the wife, so in that case, if that asset is generating any money, so it will not be clubbed with the income of the husband. So it is an exception. Now, fourth point, if on the date of the accrual of income, transferee is not spouse of the transfer, same thing. जब उसकी इनकम जनरेट हुई है, लेट अस से कोई शेयर्स खरीदे थे हस्बैंड ने और वाइफ को ट्रांसफर कर दिया, वाइफ को दे दिया, उस शेयर से जो भी डिविडेंड आए हैं या उससे कैपिटल गेन आया है, उससे जिस टाइम वो कैपिटल गेन आया है उस टाइम वो हस्बैंड वाइफ नहीं रहे, तो फिर जब हस्बैंड वाइफ नहीं रहे तो इट विल नॉट बी एडेड इन द इनकम ऑफ द हस्बैंड ना. सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट. ओके सर. Fifth point, if the property is transferred by a karta of HUF, Hindu Undivided Family, gifting co-partners property to his wife. HUF is a concept which I have discussed in the class, Hindu Undivided Family. This is a concept to, to plan our taxes. Sir. So Karta is known as the head of the family. If he gives some property to his wife under HUF, then it will not be clubbed with the income of the husband because HUF has got different rules. So it is an exception. Similarly, sixth point is again a very interesting point. Sixth point says, that if property is acquired by the spouse out of pocket money, or it is also known as pin money, that is an allowance given to the wife by her husband for her dress and usual household expenses. I'll speak in Hindi के घर खर्च के लिए
इंडियन ट्रेडिशन में हस्बैंड वाइफ को पैसे देता है कि भाई घर का खर्च बीवी चलाती है। इंडियन हाउस होल्ड में ये ट्रेडिशन चली आ रही है कि घर के खर्च के लिए, और उस घर के खर्च में अगर वाइफ ने धीरे धीरे कुछ पैसे अपने बचा लिए और जोड़ जोड़ करके उसने कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी अपना एसेट बना लिया, लेट से उसने कोई अपनी एफडी करा ली या कोई भी छोटी मोटी प्रॉपर्टी खरीद ली उस पैसे से अपने जमा कर करके, तो वो पैसा वाइफ का कहलाता है। उसमें उसकी जो इनकम होगी वो क्लब नहीं होगी हस्बैंड के साथ, क्योंकि वो वाइफ ने अपनी सूझबूझ से पैसा बचा बचा के जोड़ जोड़ के किया है। तो इन दैट केस इट इज एन एक्सेप्शन। तो इन सब केसेस में जो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, ये एक्सेप्शंस हैं कि इन केसेस में द इनकम विल नॉट बी क्लब विद द इनकम ऑफ द हस्बैंड और एनी ऑफ द स्पाउस। यस सर। राइट, इफ द एसेट्स या तो मैरिज से पहले ट्रांसफर किए हुए एसेट्स, या पैसा लेकर के आपने एसेट्स वाइफ के नाम पे या हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर किए हैं, या एक एग्रीमेंट हुआ है दोनों का सेपरेट रहने के लिए, या जिस टाइम वो इनकम जनरेट हुई है उस टाइम जो ट्रांसफरी है वो स्पाउस ही नहीं रही, या फिर HUF के अंडर में पैसा दिया है, या फिर स्पाउस ने अपने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस से या पिन मनी जो घर खर्च के लिए पैसा मिलता है उसको पैसे को बचा बचा करके जोड़ जोड़ करके कोई अपना एसेट बनाया है, तो वो सारे एक्सेप्शन है। हाँ, नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट टू सन्स वाइफ। अभी व्हाट यूज्ड टू हैपन, because I remember when I was a child, you know, my grandfather was in business, तो तब हस्बैंड वाइफ का रूल आ गया था, तो उन्होंने क्या किया था, फिर वो अपनी डॉटर इन लॉ के नाम पे करने लगे थे। See who is making this noise, please put your microphones on mute mode unless and until you have to ask question. प्रिंस ऐसा रही है प्रिंस। भाई मैंने नहीं करा, ये क्या बात है? ये प्रिंस भाई आप मत करो यार ऐसा प्लीज। यार प्रिंस तू ही मार रहा है खराटे। See, this is getting recorded और हम लोग अपने किसी वेबसाइट पे भी डालेंगे इन सब लेक्चर्स को शायद फ्यूचर में। ओके सर, वी अपोलोजाइज फॉर इट। सर हमारी क्लास का तो नहीं डालना। सो इवन अब मैं आपको बताऊं कि हस्बैंड वाइफ का केस आपने समझ लिया क्लबिंग का। अब डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ के नाम पे कोई भी एसेट ट्रांसफर करता है या कोई भी इनकम ट्रांसफर करता है, वो भी क्लब हो जाएगी फादर इन लॉ की इनकम में। या मदर इन लॉ कुछ भी अपनी बहू के नाम पे कुछ ट्रांसफर कर रही है, तो वो मदर इन लॉ की इनकम में ट्रांसफर हो जाएगी। सो एनी इनकम एक्रूइंग फ्रॉम एसेट which is transferred after 1st June 1973 to daughter-in-law with just 1 minute without adequate consideration shall be considered to be the income of the transferor. Yes, now ask the question. सर जैसे कि शादी के बाद अगर किसी मदर इन लॉ ने अपनी बहू के लिए ज्वेलरीज रखी जैसे दी उसको, तो सर वो अब किसके नाम पे, उसके मदर इन लॉ के नाम पे होगी सर? या वो, ये आपने थोड़ा सा बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन पूछ लिया और सेंसिटिव इन द सेंस के इसमें 2-3 लॉज और हैं इसमें। सर वो तो एयरलूम में आ जाता है ना, विरासत में आ जाता है। हाँ, अगर नहीं, इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हमारे यहाँ इंडियन हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, इसी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ में उनका पर्सनल एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है। इन हिंदू मैरिज एक्ट तो आई नो if a daughter-in-law comes to a household, whatever jewelry or whatever things she has brought from her household, from her parents' house, maybe furniture, that, or maybe some cash, or maybe her clothes, or maybe some jewelry, that is the girl's Stridhan. Stridhan, that is number 2. Whatever jewelry is given to the daughter-in-law by her mother-in-law or father-in-law, as a gift on the occasion of marriage. Yes, sir. सर 10 मिनट है क्लास के लिए। Then the class is up to 3:30. It's a 1.5 hour class. So still there are 35 minutes or so for the class. So whatever, jewelry is given at the time of the marriage
by the parents sir. in law to the daughter-in-law, it's considered to be the stridhan. That belongs to the daughter-in-law only. So that is a different thing. पर वो सर विरासत में क्यों नहीं आता? जैसे कई चीजें चली आती है, वो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को देते हैं। वो हो सकता है कि एंसेस्ट्रल मिली हो, पेरेंट्स इन लॉ, मदर इन लॉ को अपनी मदर इन लॉ से मिली हो सकता है उन्होंने खुद भी बनाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैरिज एक्ट में ये माना जाता है कि वो एक बार आपने लड़की को दे दी, वो उसकी हो गई। अब ये उसके बाद की चीज है कि उसके बाद कोई भी एसेट। सर तो फिर उस पे टैक्स कौन देगा उस ज्वेलरी पे? वो ज्वेलरी जो है, दैट ज्वेलरी पे टैक्स नहीं है, दैट इज एट द टाइम ऑफ, दैट इज अ गिफ्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज, सो इट इज नॉट टैक्सेबल। ओके सर। Again, there is a rule in taxable in gift. I had told you that any. Just 1 minute, Palak. Just 1 minute. You have some question to ask? Yes, sir. Just 1 minute. Just 1 minute. Just wait for 1 minute. Let me complete my sentence. Okay. I was saying that in case of gifts, the rule says, the income tax rule says that if a person receives any gift above ₹50,000 rupees in one financial year, then the whole of gift will be taxable. So one can receive gifts up to 50,000 rupees over a period of time in a one financial year. However, there is an exception to it. At the time of marriage, whatever gifts are received in the form of kind or in the form of cash, irrespective of the amount, is non-taxable in the hands of the recipients. So therefore, at the time of marriage, if the daughter-in-law gets any gift in the form of jewelry from her parents-in-law, then that is out of this ambit. That will be a property of the daughter-in-law only. So we are talking about transfer of assets beyond that. So leave aside that particular part. So now we are saying that any income accruing from asset which is transferred to daughter-in-law without adequate consideration shall be considered to be the income of the transferor. Now Palak, yes, ask the question. Palak? सर जब ज्वेलरी खरीदी होगी किसी ने तो टैक्स तो तभी दिया होगा ना, बार बार तो थोड़ी ने वो देगा कोई, मतलब जो बायर होगा उसी टाइम पे वो टैक्स देंगे। नहीं, हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की। वो तो जब टैक्स दिया होगा तो जीएसटी दिया होगा ना, या पहले जमाने में सेल टैक्स था, तो वो सेल टैक्स अलग है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। हम बात कर रहे हैं इनकम की, इनकम टैक्स की, तो वो तो दिया ही होगा, वो आप सही कह रहे हो, वो तो दिया होगा टैक्स। अब बात कर रहे हैं कि डॉटर इन लॉ को भी उसके ऊपर टैक्स देना है क्या, उसको मिला है तो। मैरिज के टाइम पे जो गिफ्ट मिलते हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होता। हाँ सर, वो तो टेंजिबल गिफ्ट्स होते हैं, तो जैसे बहुत सारी सिर्फ ज्वेलरी नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे गाड़ी एंड ऑल भी होती है, तो उसके ऊपर तो टैक्स तो होता ही नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, मैरिज के टाइम पे कोई भी आपको गिफ्ट मिला है तो मैरिज के दिन पे वो सारा चीज नॉन टैक्सेबल है। हाउएवर, अगर रूल के हिसाब से चलें, अगर आप बर्थडे कर रहे हो और बर्थडे में कोई बहुत बड़े आप मिनिस्टर हैं या बहुत बड़े आप अधिकारी हैं और आपके घर में बहुत बड़े बड़े गिफ्ट आए हैं, बर्थडे पे भी बहुत बड़े बड़े खिलौने आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आए हैं, बहुत ऐसी ऐसी चीजें आई हैं आप उसके बच्चे के लिए या खुद आपके लिए, तो अकॉर्डिंग टू रूल उन सबकी भी वैल्यूएशन करी जाएगी और वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। रूल ये कहता है वैसे, अगर आप रूल के हिसाब से चलें तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट अगेन? यस सर। So now coming back to our topic is saying, sir, please explain again, sir. See, it is as simple as that कि किसी भी बिजनेस में या किसी भी घर में अगर फादर इन लॉ या मदर इन लॉ किसी भी एसेट्स को अपनी डॉटर इन लॉ के नाम पे ट्रांसफर करते हैं विदाउट टेकिंग एनीथिंग, तो उससे जो इनकम हो रही है वो उन्हीं की इनकम कहलाई जाएगी, फादर इन लॉ या मदर इन लॉ की। ये कहने का मतलब है। जैसे हस्बैंड और वाइफ के केस में था सेम,
जो है सन्स की वाइफ और फादर इन लॉ या मदर इन लॉ के साथ में. फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू सी अनदर स्लाइड. ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द बेनिफिट of spouse or for the benefit of son's wives. If an individual transfers any capital assets directly or indirectly or otherwise, then for adequate consideration to his or her daughter-in-law after 1st June 73 for her immediate or deferred benefit, then the income derived by daughter-in-law from said capital assets will be included in the income of the transferor. Now, is this point clear to you or not? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Right. तो अभी हमने क्या देखा कि हस्बैंड वाइफ की इनकम क्लब हो जाती है और पेरेंट्स इन लॉ और डॉटर इन लॉ की भी इनकम क्लब मानी जाती है अगर आपने कोई एसेट उनके नाम ट्रांसफर किया एंड यू हैव नॉट टेकन द एडिक्वेट कंसिडरेशन. राइट. नेक्स्ट. ओके, आई विल कम टू दिस अ लिटिल लेटर. दिस इज अ स्मॉल फॉर्मूला. लेट अस कम टू इनकम ऑफ माइनर. नाउ सेम थिंग. माइनर मीन्स अ माइनर चाइल्ड. If a parent transfers some income to a minor, then also the income will be clubbed. So the word child here means he may be a natural child, he may be an adopted child, he or she may be a stepchild. So income derived by the minor child will be clubbed in the income of the parent whose income is higher or parent who maintains such minor child. Excuse me, sir. Yes. सर सपोज जैसे कोई बच्चा जैसे माइनर है बट वो खुद जैसे किसी ना किसी बिजनेस या ट्यूशन वगैरह चला रहा है अगर एंड उससे इनकम आ रही है अगर उसकी तो उसका फिर क्या होगा सर? वो उसके पेरेंट्स की इनकम में क्लब होगी? नहीं, तब नहीं होगी. यही नीचे लिखा हुआ है एक्सेप्शन आ गया. देखिए जो आप बात कह रहे हैं ये एक्सेप्शन आ गया. तो फिर एक्सेप्शन मैनुअल वर्क डन बाय वो फिर बच्चे की इनकम मानी जाएगी. माइनर चाइल्ड और एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ हिज और हर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. जैसे बहुत सारे बच्चे आप देखते हैं दे कम ऑन टेलीविजन शोज में भी आते हैं, डांस प्रोग्राम्स में आ रहे हैं, सिंगिंग में आ रहे हैं, उनको प्राइज मिलते हैं, उनको पैसा भी मिल रहा है उसमें, या एक्टिंग भी कर रहे हैं बच्चे सीरियल्स में. या कोई बच्चा है ठीक है माइनर है 11th क्लास में पढ़ रहा है, 10th में पढ़ रहा है, बट छोटे बच्चों को ट्यूशन दे रहा है वो, तो उसकी अपनी इनकम है वो. बट सर जैसे अगर ट्यूशंस अगर वो दे रहे हैं तो सर वो सेटअप करने के लिए सोर्स जो आया इनकम का वो तो उसके पेरेंट्स से लगा पहले, तो फिर नहीं वो कौन सा सेटअप करने के लिए? इसमें क्या सेटअप है? वो मान लीजिए फर्नीचर वगैरह. नहीं क्या पता वो किसी के घर पे जा करके पढ़ा रहा हूँ और उसके घर पे भी आ रहा है उसमें फर्नीचर, वो सब इतनी चीजें नहीं मानी जाती. वो कोई दुकान थोड़ी चला रहा है अपने, उसके घर पे कोई आसपास के बच्चे आ रहे हैं पढ़ने या वो कहीं पे जा रहा है पढ़ाने, तो वो कोई फर्नीचर सेटअप वो दैट इज इमैटेरियल. यस सर. ओके सर. ये जो ऊपर वाला केस है ये है कि सपोज मैं हूं, मैंने 10 लाख रुपया अपने छोटे बच्चे के नाम पे उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया. मेरा पैसा मैं बच्चे के नाम कर सकता हूं, उसको मना नहीं कर रहा है लॉ. इनकम टैक्स उसको मना नहीं कर रहा है. वो कह रहा है आपका पैसा उसको मैंने 10 लाख रुपया अपने 10 साल के बच्चे के नाम पे 8 साल के बच्चे के नाम पे उसके बैंक में डाल दिया. यस सर. अब उससे इंटरेस्ट की जो इनकम आई है वो इंटरेस्ट की इनकम वो मेरी इनकम में ऐड होगी. ओके सर. समझ गए? या फिर मैंने उसके नाम पे कोई एफडी करा दी बच्चे के नाम पे, फिक्स डिपॉजिट करा दिया, उसका ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, तो वो भी इंटरेस्ट किसका होगा? मेरा होगा, मेरी इनकम में ऐड होगा. या मैंने बच्चे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली लेटर से, अब उससे और उसको रेंट पे दे दिया, उसका जो रेंट किसकी इनकम में जाएगा? मेरी इनकम में जाएगा. सो इसीलिए हमने सेकंड पॉइंट जो लिखा है अब आप देखिए, इनकम ड्राइव बाय द माइनर चाइल्ड विल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ द पेरेंट. और किसके पेरेंट में? उसके पेरेंट में पापा भी है, मम्मी भी है. whose income is higher और पेरेंट who maintain such minor. अगर दोनों हम कमा रहे हैं हस्बैंड वाइफ, तो ये भी देखिए इनकम टैक्स है. अगर मेरी इनकम ज्यादा है, वाइफ की इनकम कम है, तो मेरी इनकम में ही ऐड होगा, तो जिससे कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज को ज्यादा टैक्स मिले, क्योंकि हायर इनकम में हायर टैक्स रेट मिलेगा उनको. यस सर. सर एक क्वेश्चन है,
हाँ जैसे आपने कहा कि आपने अपने बच्चे के नाम जैसे प्रॉपर्टी करवा दी, हाँ बट सर हाँ प्रॉपर्टी तो माइनर के नाम होती नहीं है ना, चाहे कोई फादर जैसे अगर अपने बच्चे के नाम करवाए तो भी उसका मेजर होना तो जरूरी है सर प्रॉपर्टी नाम करवाने के लिए। नहीं, जो आपने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ नहीं हो सकता, ये बात सही है, लेकिन बेनिफिशियरी तो हो सकता है ना। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया है, आई एज ए गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट साइन मैंने किया है, बट मैंने उसमें बेनिफिशियरी का नाम अपने बच्चे के नाम पे डाल दिया, तो हो सकता है। सर बट उसमें बच्चे के सिग्नेचर वगैरह नहीं होंगे फिर कुछ? नहीं, उसमें गार्जियन होता है, जो उसका फादर है या कोई भी गार्जियन है, वो उसके बिहाफ पे वो सारे सब सिग्नेचर कर देता है। तो उसमें बेनिफिशियरी डाल देते हैं, बच्चे को बेनिफिशियरी डाल देते हैं उसमें, और उसको ये भी दे देते हैं कि उसका राइट्स कभी भी सेल करने का, जब तक वो 18 साल का नहीं होता, मेजर नहीं होता, राइट्स उसके पेरेंट के पास या गार्जियन के पास होगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली चाइल्ड के नाम पे आ जाएगा, वो उसको फिर सारे राइट्स भी आ जाएंगे सेल करने के, उसको किसी भी तरह। सर उसका मतलब वही ना कि 18 साल के होने के बाद उसके राइट सारे उसको मिल जाते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ऑलराइट सर। यस सर, ओके सर। ठीक है ना, तो बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी इन एनी kind of it may be shares, it may be bonds, it may be fixed deposits, it may be a bank account, it may be a property. Okay sir. Okay, so exemption वही है कि हाँ, exemption इसमें इनकम टैक्स देता है कि बच्चे की जो भी इनकम हुई है वो इट विल बी क्लब टू द इनकम ऑफ द पेरेंट, बट 1500 रुपए तक का एक्सेप्शन दिया है उसमें, साल में सिर्फ 1500 रुपए, मतलब इतने पुराने रूल बने हुए हैं, अब तक वही चल रहे हैं। सपोज कर लीजिए बच्चे की इनकम हुई है, पैसा मेरा था, बच्चे की इनकम साल में हुई है 4 लाख रुपया, तो 4 लाख में से 1500 रुपए लेस होकर के बाकी इनकम मेरे इनकम में जुड़ जाएगी, whichever is less. So income of the minor child who is suffering from any of the disabilities. हाँ, अगर कोई बच्चा किसी डिसेबिलिटीज, डिसेबल्ड है, उसमें कुछ डिसीज है, उसको हैंडीकैप्ड है बच्चा, तब वो बच्चे की इनकम आनी है, ये फिर क्लब नहीं होती पेरेंट में। तो फिर ये ऊपर वाला पॉइंट समझ नहीं आया सर, क्योंकि जैसे आपने बताया था कि अगर बच्चे की इनकम है तो वो तो बच्चे की रहेगी। हाँ, तो वही मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ना। फॉर एग्जांपल बच्चे की इनकम हुई है 3 लाख रुपया, यस सर, मेरा बच्चा है, और तो 3 लाख रुपया किसकी इनकम में ऐड होगा? मेरी इनकम में, मैं उसका पेरेंट हूँ। बट उस 3 लाख में से एक डिडक्शन मिलेगा 1500 रुपए का, तो 3 लाख माइनस 1500 रुपया, तो कितना हो गया? उस पे पेरेंट को टैक्स देना पड़ेगा 3 लाख में से 1500 माइनस करके। मतलब मेरी इनकम में जुड़ जाएगा, टैक्स बनता है तो मैं टैक्स दूंगा, नहीं बनता है तो नहीं दूंगा। सर बट वो तो माइनर की इनकम है बच्चे की, तो फिर सर उसमें तो आपने जैसे बताया टैक्स नहीं लगेगा। ये कहाँ बताया टैक्स नहीं लगेगा? मैंने बोला है कि माइनर की इनकम, इफ द मनी फॉर एक्वायरिंग दैट एसेट, ये देखिए लास्ट स्लाइड देखिए ना। यस सर। Income derived by the minor child will be clubbed in the income of the parent whose income is higher. तो ये थोड़ा सा सेंटेंस इसमें ऊपर नहीं आया कि if there is any transfer of asset in the name of the child, all income which arises or accrues to the major child shall be clubbed in the income of the parent. And basically whatever is the income is being generated, तो बच्चे ने पैसा कहां से कमाया? तो बच्चे को पैसा तो मैंने ही ट्रांसफर किया था ना, अगर मैं उसका पेरेंट हूं बच्चे का, तो उसमें जो इनकम हुई है तो वो इनकम भी मेरे ही इनकम में ऐड होगी, कहने का मतलब ये है। और जो इनकम बच्चे की होगी उसमें 1500 रुपए लेस करके वो इनकम मेरे इनकम में ऐड होगी, ये मतलब है। ओके सर। 1500 रुपए का एक एग्जम्पशन दिया उन्होंने माइनर चाइल्ड के लिए। अगर माइनर चाइल्ड की इनकम 1 लाख रुपए की हुई है साल में, तो 1 लाख में 1500 रुपए आप माइनस करिए, कितना हो गया? 98,500 rupees will be added to the income of the parent. सर माइनर चाइल्ड के लिए सर एज क्या होगी सर? हाँ, माइनर चाइल्ड के लिए एज क्या होगी सर? less than 18 years. Less than 18 years. Okay. So this comes under which heading? Like income from other sources? Income of minor.
clubbing of income. We are studying clubbing of income only. So when we are doing the calculating the gross income, this will come under which heading? Which income? Like when we have to club. So this is okay. See, this clubbing of income is different from gross income. This clubbing of income, as we have been talking about, clubbing of income means income of B is being treated as income of A. This is what we mean over here. That I understood. Achha, okay. Excuse me, sir. Yes. सर अगर कोई चाइल्ड सर लाइक पैसे इन्वेस्ट करता है, लाइक जैसे ट्रेडिंग में करता है बिटकॉइन में, तो सर अगर उसका प्रॉफिट मिलता है तो सर वो भी टैक्सेबल होगा और वो भी पेरेंट के इनकम इंक्लूड होगा? नहीं। यस, अगर वो जो बिल्कुल अगर वो पैसा पेरेंट का ही था जिसको उसने इन्वेस्ट किया है, चाहे बिटकॉइन में किया है, किसी भी चीज में किया है, तो वो पेरेंट की ही इनकम में वो इनकम ऐड होगी। ओके सर। दिस इज कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम और एग्रीगेशन ऑफ इनकम। और सर अगर जैसे कोई बच्चा जैसे अर्न कर रहा है बट वो माइनर नहीं है, वो मेजर है एंड वो खुद के उससे अर्न कर रहा है, तो फिर क्या वो क्लब होएगा फिर वो पेरेंट्स? नहीं, इट्स ओनली इन द केस ऑफ माइनर, नॉट इन द केस ऑफ मेजर। यस, तो नॉट इन द केस ऑफ मेजर। यस। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड सेज दैट ट्रांसफर एंड हाँ एंड कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? एंड कर रहे हो क्या क्लास? नहीं, अभी देखिए 20 मिनट है अभी क्लास में, अभी टाइम है एंड होने में। कर दो सर, आज जल्दी कर दो। आप लोगों की अटेंडेंस, इसमें एक ऑप्शन है इसमें अटेंडेंस लेने का। अभी 1 मिनट में आप लोगों के इन द मीनवाइल, चलिए थोड़े नाम भी मैं लास्ट में ले लेता हूँ। अभी नाम आपके अभी फ्लो में चल रहे हैं, तो आई विल टेक द नेम्स ऑफ, आई विल टेक द अटेंडेंस आल्सो। ओके सर। अटेंडेंस में मैन्युअल, हाँ वॉइस शट ऑन करा लेना सर सबसे एक बार, लगे ऑन करके छोड़ के चले। तो नहीं, आई विल टेक, I'll call your names in the last and I'll take your attendance and or you can type your names in the chat box. वो तो सर आपको पता ही नहीं चलेगा ज्वाइन कर रहा है। अच्छा हाँ, ऑफ करने के बाद पता नहीं चला। ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी टू द HUF of which he is a member. अभी कौन लीड करेगा क्लास? अभी मैं इसको समझा देता हूँ, वैसे पढ़ने की बजाय इसको समझा देता हूँ। अब ये देखो बहुत सारे केसेस दिए इन्होंने। ये केस हुआ है कि लेट अस से कोई प्रॉपर्टी थी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, मतलब मैंने खुद अपने पैसे से कोई प्रॉपर्टी बनाई है। एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी व्हिच इज आई हैव एक्वायर्ड इट फ्रॉम माय फादर और फ्रॉम माय फोरफादर्स, फ्रॉम माय ग्रैंडफादर, दैट इज कॉल्ड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। And another property is known as self-acquired property. Self-acquired property means that property which has been earned through your own efforts, your own skills, through your own money. So if a person transfers his self-acquired property to the Hindu undivided family of which he is a member, then what happens? Let us say I am a member of a HUF which is, say, running by my father. If I transfer my property to the HUF and this property is earning some income, say rental income or whatever, so this income also will be treated as my income only, not of HUF, not of family, full family. HUF means full family. अभी आप मोटा मोटा समझिए कि मैंने पूरी अपनी जॉइंट फैमिली में उस प्रॉपर्टी को बगैर पैसे लिए मैंने उसमें डाल दिया, पूल में डाल दिया। फैमिली की प्रॉपर्टी मेरी थी, मैंने अपनी मेहनत से कमाई है, उसको मैंने HUF के पूल में डाल दिया, अपने फैमिली के पूल पे। जॉइंट फैमिली है जिसके अंदर मेरे ब्रदर्स भी हैं, मेरे फादर भी हैं, मेरे अंकल्स भी हैं, तो उन सब में मैंने अपनी प्रॉपर्टी को डाल दिया। अब उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है तो इनकम टैक्स कहता है कि ये भी आपने हमको हो सकता है धोखा देने के लिए डाला हो कि जिससे आपको टैक्स ना देना पड़े उसका, और सब में वो उसका टैक्स बढ़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। वो कहेंगे कि हम इंडिविजुअल से आप ही की इनकम मानेंगे, आप उसको कहीं भी डालो, अपनी फैमिली में डालो, उस प्रॉपर्टी को कहीं भी डालो, उससे अगर कोई इनकम आ रही है तो उसका इनकम आपकी इनकम में ऐड करेंगे, उस पर टैक्स बनता है तो आप ही दोगे।
ये क्लियर है मेरा जो पॉइंट है? यस सर, यस सर। तो ये भी एक क्लबिंग हो गया कहने का। So now I am reading it, where an individual converts his individual or self-acquired property into the common pool of HUF, of which he is a member after 1969 this rule came. The income from such a converted property shall be treated as under. Number A, the individual shall be deemed to have transferred the converted property through the family to the members of the family for being held by them jointly. Now this is the point. B point, the income derived from such a converted property or any part thereof shall be deemed to arise to the individual and not to the family. तो इंडिविजुअल की ही इनकम मानी जाएगी, वो भी नॉट द फैमिलीज इनकम। सो ये रूल इसलिए बनाए थे कि लोग क्या करते थे कि अपनी ज्वाइंट फैमिली में डाल देते थे अपने टैक्स बचाने के लिए, तो ये इसलिए रूल्स बनाए गए ये सारे क्लबिंग के। अब एक और है इसका आई थिंक इसका लास्ट टॉपिक है, एक दो स्लाइड्स हैं बस इसमें। बेनामी ट्रांजैक्शंस। बेनामी, what is the meaning of benami? It's a Hindi word actually, but it is without name. Without name, but it is sir unregistered one. Under no registration. No name, without name. इसका मतलब ये है, बेनामी का मतलब होता है विदाउट नेम, बट इसका रियल मीनिंग है अ ट्रांजैक्शन in which the real beneficiary is not the one in whose name a property has been purchased. So it is an arrangement where the property is held by one person and the amount for it is provided by another. For example, let us say मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन मैं अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता। या तो हो सकता है कि उस शहर में कुछ सीलिंग है कि भाई दिल्ली जैसी जगह में आप अपने नाम पे 2 ही प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, तीसरी नहीं खरीद सकते, चौथी नहीं खरीद सकते। कई शहरों में ऐसा भी होता है। या फिर वो मेरा ब्लैक मनी है, मैं उसको शो नहीं कर सकता अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदूं। या मैं कहीं का ऑफिसर हूं और ये सब आई विल बी आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम वेयर दिस मनी केम। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग अ प्रॉपर्टी इन माई नेम, आई विल बाय दैट प्रॉपर्टी इन से माई जूनियर्स नेम। कोई भी he may be my servant, he may be my junior colleague, it may be my distant relative. तो मुझे उसको भी पता है, मैंने उसका नाम उसका ले रहा हूं, उसके नाम पे मैंने रजिस्ट्री करा दी है प्रॉपर्टी के, पैसा मैंने दिया है, उससे जो भी बेनिफिट मिलेंगे वो मुझे मिलेंगे। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे उसको प्रॉपर्टी को रजिस्टर खरीदूंगा जिसको पता है, जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, वो कल को बोलेगा नहीं प्रॉपर्टी मेरी है, पैसा मेरा लगा हुआ। लेकिन लोग अपने ड्राइवर के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, लोग अपने कुक के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, नाम उसका चल रहा है, उसे पता कुछ नहीं है, उसने तो साइन करने हैं या अंगूठा लगाना है। सो सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस आर नोन एज बेनामी ट्रांजैक्शंस, वेयर द नेम ऑफ अ पर्सन on the registration paper is of a different person, but he is not the real owner. The real owner is behind the curtains. So again, if a transaction is considered, or income tax authorities को लगता है कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन है, if the income from such transaction shall be taxable in the hands of the real person, and so the बेनामीदार जिसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी है उसको बोलते हैं बेनामीदार, is not taxed for the income arising from such transactions. They will try to search the real person behind it, that who is the real person. So income received from firm, so that was the benami transactions, right? So many times benami property is also, property is also purchased in the name of spouse or child, or sometimes in the name of brother, sister, or other relatives, or any other person. As I told you, it may be a servant, it may be a cook, it may be a driver. One more. Now, next we come to income received from firm assessed as firm and association of persons. Income received from AOP's association of persons. What is association of persons? Sir, mutual understanding among persons. They form a group. Group of people.
From the income tax point of view, they have defined AOP, Association of Persons. Association of Persons. सर जॉइंट फैमिली में जब हम लोग करवा के रखते हैं लोगों के नाम, उस पे शायद हो सकता है ये। नहीं, जॉइंट फैमिली से मतलब नहीं है। Sir, when the group of people have the same understanding and the same goal to complete. बुक से नहीं बताना, बुक से नहीं बताना। सही बात है। बता रही हूँ। बुक से कोई नहीं बताएगा यार, गलत बात। ये गूगल और बुक भाई अलाउड नहीं है, गलत है, गलत। यार तुम लोग सर पढ़ा। ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर तो टाइटल है ये सारे के सारे। ओके, सी एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर स्लाइड में, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इनकम, इसको इनकम टैक्स ने डिफाइन किया। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब है कुछ इंडिविजुअल्स ने मिलकर के कोई काम किया। लेट अस से आप 3-4-5-6 स्टूडेंट हैं, आपने या 8-10 स्टूडेंट मिलकर के कोई ऐसा इवेंट करा लेते हैं कॉलेज में, उससे आपको इनकम हुई है, तो वो टेम्परेरीली आपने एक बॉडी बनाई थी इंडिविजुअल्स की, आपने कोई इवेंट किया या कोई भी ऐसा कोई ट्रेडिंग की है, और उसके बाद फिर आप अलग अलग हो गए। जब तक आप कॉलेज में थे आपने कोई लेट से शेयर्स में इन्वेस्ट किया मिल करके, पूलिंग करके पैसे की, और उसके बाद आप चले गए कहीं। तो इनकम टैक्स कहता है एज ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी यू आर लायबल टू पे टैक्स। हाँ, यस सर। यस। वर्ल्ड का इकोनॉमी क्यों डाउन हो रहा है सर? एक मिनट पर, अभी इस टॉपिक पे लेट अस स्टिक टू दिस टॉपिक, वो फिर अलग से बात करते हैं। मैं बस इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, उसके बाद करते हैं बात है। इसके बाद बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब ये है कि आप लोग लेट से आप लोग इंडिविजुअल्स हैं, और जब तक आप कॉलेज में आप बोलते हो यार कोई चलो कहीं इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में मिलकर के आप लोगों ने इकट्ठे पैसा पुल अप किया, उससे पैसा कमाया, तो वो एज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कमाया। इनकम टैक्स बोलता है कि आप एज ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हमें टैक्स दो भैया, आपने इनकम कमाई है। या लेटर से जैसे अभी कोई आपके कॉलेज में कोई फंक्शन हो और आप उसके अंदर कोई स्टॉल अपना लगाते हो खाने पीने का, कुछ लड़के मिलकर के, उससे आपको इनकम हो गई, वो टेम्परेरी थी, एक ही वन इवेंट की एक इनकम थी, वो हो गई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसी तरह एसोसिएशन ऑफ पर्संस है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये जो लिखा हुआ है एओपी या यहाँ लिखा हुआ है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, मींस दे मे बी इंडिविजुअल्स एसोसिएशन, इट मे बी इंस्टीट्यूशंस एसोसिएशंस। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स इट हैपन्स के 2 या 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मिलकर के एक एनुअल फंक्शन कर लेते हैं। उन्होंने किसी सेलिब्रिटी को बुलाया या कोई इवेंट कराया, उसमें टिकट रख दिया, उससे फिर पैसे मिल गए उनको, तो वो हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो अब हम व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्टडी इट, दैट व्हाट इज इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्संस में, उसमें क्या है। इफ एसएससी, अगर आप कोई एसएससी थे और आप मेंबर थे इसी तरह की कोई एसोसिएशन ऑफ पर्संस के या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के, अदर देन हिंदू और डिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ का रूल अलग है। तो आप ये समझ लो कि आपने कोई कॉलेज में रह के कोई इवेंट कराया, उससे आपने कुछ पैसा कमाया, तो आप या तो एसोसिएशन ऑफ पर्संस में आएंगे या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में आएंगे, तो आप उसके एज अ मेंबर हो गए। तब क्या होगा, एनी पोर्शन ऑफ द अमाउंट विच ही इज एंटाइटल्ड टू गेट इज क्लब्ड in the total income of the SSC for the calculation of aggregation of total income of the SSC. क्या मतलब है, any portion of the amount which he is entitled to get is clubbed in the total income of the SSC for the calculation. The income is tax free as income. हाँ, इसमें बड़ा सिंपल सा रूल है कि AOP में क्या है कि 10 लोगों ने 10 स्टूडेंट से मिलकर के कोई इवेंट कराया, तो उसके अंदर आप इकट्ठे एओपी या बीओआई अपना टैक्स देगा। अब उसका जो प्रॉफिट हुआ वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया सारे मेंबर्स में, तो डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन आपकी इनकम में तो जुड़ेगा, लेकिन वो नॉन टैक्सेबल होगा, क्योंकि 2 बार, इस केस में 2 बार टैक्स नहीं लगता। ये लिखा है, जो इनकम होगी it will be clubbed in the total income of the SSC for the calculation of aggregation of total income of the SSC. But however, this income is tax free as income tax is already paid by the association of persons or body. बस ये सिंपल रूल है इसमें। चलिए, तो ये अभी मैं इतना ही कर रहा हूँ, फिर बाद में इसको नेक्स्ट सेक्शन में। ओके सर, ओके सर। अभी आप इसमें कोई क्वेश्चन पूछिए अभी तक। हाँ बोलो। हाँ सर क्वेश्चन था सर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में जो पर्सन है वो तो कंपनी भी हो सकती है, आर्टिफिशियल पर्सन। हाँ, तो उसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज आता है?
जिसका जितना परसेंटेज होगा उस हिसाब से शायद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या बात है? वो तो जैसे उनका आपस में सेटलमेंट हुआ होगा वैसे होगा। यस सर भाई। नहीं सर, पर्सन है, जैसे पर्सन तो हम भी हैं, पर्सन तो कंपनी भी है, पर हमें तो इंडिविजुअल डिस्क्राइब किया गया है सर अटेंडेंस। हाँ भाई तो पोस्ट पे भी डिपेंड करता है ना, कौन किस पोस्ट पे है, उसका कितना शेयर है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो आपस में उनका जैसे पार्टनरशिप फर्म में होता है कि भाई किसी का कितना शेयर है, किसी का 40% Yes, sir, है, yes, किसी का sir. 30% है। इसी तरह एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या है कि कोई भी 1 या 2 इवेंट करा दिया यस Yes, sir. और आपने कोई परमानेंट कोई फर्म नहीं बनाई थी, आप तो ऐसे मिलकर के कोई आपने इवेंट करा दिया। कोई व्यापारी का संगठन था, दुकानदार थे बहुत सारे, उन्होंने होली पे एक इवेंट करा दिया, कोई अच्छा सा कोई कवि सम्मेलन करा दिया, उसके टिकट रख दिए, उसमें पैसे की कमाई हो गई, तो वो हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्संस, क्योंकि टेम्परेरीली एक ही इवेंट के लिए बनाया। तो उसकी जो इनकम होगी ओवरऑल वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन उसके ऊपर टैक्स देगा। फिर इंडिविजुअली बांटेंगे अपने अपने मेंबर्स में, फिर मेंबर की इनकम में जुड़ेगा जरूर, बट मेंबर को फिर उसके बाद टैक्स नहीं देगा। ओके सर। ओके सर। भाई ये है। ओके सर। ओके सर। ओके ओके सर। तो अब नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरे ख्याल में ऑनलाइन में आपने एंजॉय किया होगा, यू मस्ट हैव एंजॉयड द ऑनलाइन लेक्चर। सर बिल्कुल सर। यस सर। यस सर। सर ऑनलाइन ही रखा था सर अच्छे क्लास तो चलो अभी सर कंचा एकदम सर ऑनलाइन में ज्यादा अटेंडेंस मिलेगी आपको सर। सर आप सर क्लोजिंग शायरी। हाँ तो अभी आई हैव स्टॉप द रिकॉर्ड।